of many universities and interacted with the academic faculties of higher education in Guru Dakshita, orientation and sensitization on NEP 2020, refresher course and research methodology course, and she has been worked on lot of areas of education, mainly National Education Policy 2020, multidisciplinary and holistic education as per NEP 2020, academic leadership, ethical consideration in research, health, environment and well-being, life skills development among students and teachers, gender sensitivity and many more. So Thank you. really we are fortunate enough to have Saroj Yadavji as a resource person of today's session. I welcome Madam on behalf of Director UGC MMTTC and my own behalf. I welcome you and I am very happy to see you here. The participants, those who are here and will interact with you, are from different universities and colleges. They are, they are teaching there and very interactive group it is indeed, and they want to know more about the NEP 2020 teacher education and about other topics related to research. Madam will deliver the lecture on ethics in research. It is really very important topic because the computer age is saying to the candidates cut copy paste. The computer age is not saying, but the students are going towards this direction. Computer age is taking us to the modernization, but what kind of qualities, what kind of things we have lost on the path when we are getting the modernization. The madam will deliver the lecture on this important topic, ethics in research. I welcome you, madam, and request you, please, you start your lecture. Thank you so much. Thank, thank you, Professor Nasreen, madam. Good morning to you all. It's early morning. I think it's very important we all are fresh so we can interact. So, respected Dr. Faiza Basi, Director, MMTC, Professor Nasreen Muzib, all the participants. So, as Madam said, that ethics is very, very important, and particularly before ethics, I think it's very important to do research, because if you have already gone through the new education policy, not now new, it is a national education policy 2020, and there will be only two type of universities or departments, you can say. One will be the teaching intensive and another will be the, you can say, research intensive. And see the beauty of that research intensity, that if you are just able to spend one more year, then one can go directly to do PhD. So research is very, very important. And in this session, we are going to discuss about some of the issues related to, you can say, research and then ethics. So why research is needed? Because research and even innovations are needed in the quest of truth. We want to find out what is truly existing at present, and for creating, or you can say presenting, new and authentic scientific information to contribute to socio-economic development of the society. So why we conduct research? To find out something new, to innovate something new, so that we can contribute to the society, we can contribute to the socio-economic development. But it is possible only if we conduct very rigorous, means adopting scientific and responsible efforts. If we do some fabrication, falsification, or cut and paste, as madam said, then definitely we are not going to contribute to that extent, because it is already wrong. We are not presenting the truth in front of the faculty members, in front of the society, in front of the country, you can say those who have to make policies, etc. So it is very important that ethically improve quality and simultaneously preventing any misconduct in the academic field is essential. Serious concerns have been raised over many years now, especially with the increasing trend of publishing research paper, though it is a compulsion also.
because for getting promotion you have to publish papers, and they are saying if you publish in an international journal then the marks will be more. So what happened that many people have started international journal even within the country itself. How far they are international, how far they are scientific, how far they are truly presenting the research report, that is not known. So keeping that into consideration also, it is important that particularly in teacher education, the research ethics is very important, because teacher is the base. You people are the base. Teacher doesn't mean only teacher in, you can say, the education department, but teacher in the other department, in social science, in science department, in art, in law, in medicine. So wherever the teacher is teaching, wherever the teacher is guiding, it is very important that ethical consideration should not be compromised. It is if we compromise these ethical considerations, there are certain dilemmas are there, that sometimes it is very difficult to follow very strictly rigor design, because the design itself want some relaxation, some flexibility. So there the chances are there that we may relax some of the ethical consideration, but that is the design desire, that is the design wants. So that time it may be possible. So let's discuss what is research. So research is nothing but curiosity driven hunt for the unknown, means things which are unknown. But there are, in other words, they are saying research means researching a phenomena that in reality already exists. Yani anything you find out, this artificial intelligence we have find out, so that doesn't mean that it was never exist. So the researcher also think that things are already exist in nature, in the universe, but the underlying principle is that we are, these things may be in abstract, which are not seen, which are not observed. Therefore they are saying that research means that the hunt for the unknown, which is already existing in the universe. So research is an attempt to transform these unknown into known, and to demystify the mystery associated with the phenomena. So anything, though we are, it is said that it is existing somewhere, but we have to make it known so that we can make use of that, you can say, efforts or that research. The basic desire for new knowledge means the quest to advance knowledge, to bring out something new into the system. And Aristotle, century ago, said, the more you know that you do not know. It's very right. अगर आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी लिटरेचर को पढ़ते हो, किसी भी एस्पेक्ट पे जितना पढ़ते हो, उतना आपको लगता है ओहो मुझे तो ये पता ही नहीं था. नहीं पढ़ते हैं तो हम इग्नोरेंट हैं, हमें पता नहीं. लेकिन द मोर वी रीड, द मोर वी थिंक that we do not know. Similarly, Einstein also said, the more I learn, the more I realize that how much I do not know. आप रोज सुन रहे हैं, आपने जब ज्वाइन किया होगा इससे पहले तो आपको लगता है कि ये सब तो पता ही है, रिसर्च में एथिक्स क्या है, कौन सा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कौन सी एजेंसीज हैं. लेकिन जब आप सुनते हैं तो लगता है अच्छा ये तो था, इतना तो पता था मुझे, लेकिन ये भी है, ये मुझे नहीं पता था. तो जितना आप कितना भी कभी भी आप देख लीजिए, सोच लीजिए, आप देखेंगे कि जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप जानेंगे, उतना ही आपको लगेगा कि यू नीड टू नो मोर. So research uses a systematic inquiry techniques, rational methodology, which involves defining the questions based on what is presently known, means, and hypothesizing, assuming, imagining, making unbiased observations, analyzing the observations, finally interpreting the results to support or reject the hypothesis. So means it involves many questions which are known and which are imagination. When we prepare hypothesis, यही तो कहते हैं ना कि ये acceptable है, ये not acceptable है, ये null hypothesis है. अगर हमें बहुत सारी चीजें उस एरिया की पता है तो हम
एक तरह से डायरेक्शनल हाइपोथेसिस करते हैं कि ये चीजें ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। हो सकता है हमारी स्टडी कहे कि नहीं नहीं, रिलेशनशिप नॉट नेसेसरली कि ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, नहीं भी एग्जिस्ट करता होगा। सो हाइपोथाइजिंग भी करते हैं। फिर अनबायस्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब अगर डेटा आपका बायस्ड है तो योर रिजल्ट विल आल्सो बी बायस्ड। सो हमें अनबायस्ड ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेंगी। एनालिसिस में अगर हमने बायसेस दिखा दी तो भी हमारी रिसर्च स्टडी सही नहीं है, then itself also it will not give us the good results. So more important research effort is that the outcome generates new questions. यानी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए कि नए क्वेश्चंस जनरेट करते हैं। देखिए एक छोटी सी चीज है, जैसे हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स में हम कहते हैं कि स्पीकिंग मानी कम्युनिकेशन, बट कम्युनिकेशन डजंट मीन ओनली स्पीकिंग। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी वॉज नॉट ए गुड स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर नहीं थे उनकी। अगर आप स्पीच सुने तो कभी कभी आपको लगेगा कि समझ में तो आ ही नहीं रहा कि क्या क्या बोल रहे हैं, बट ही वॉज ए गुड कम्युनिकेटर। यानी वो आपके दिल को छू जाते थे। उनकी भाषा चाहे बिल्कुल बहुत जो कहते हैं ना कि बहुत शुद्ध भाषा या इस तरह की नहीं थी। सो कम्युनिकेशन मीन्स दैट यू हैव टू लिसन ऑल्सो। So similarly in this, and listening means that you have to generate new questions. जब आप सुनोगे तभी तो आप बच्चे को नए क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। So communication include speaking, communication include your listening, and listening is also very attentively. And then asking questions means that you should ask questions in such a way that the student should ask more questions. यानी तभी तो अगर आप बड़े आराम से भाई ये ऐसा होता है तो बच्चा कहेगा नहीं मैम ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन आप बोलने के लिए देंगे ही नहीं उसको समय, उसको एनकरेज नहीं करेंगे तो वो सवाल अगले सवाल उठाएगा ही नहीं। तो इनोवेशंस कहाँ से होंगे, नए क्वेश्चंस कहाँ से जनरेट होंगे। सो रिसर्च ऑल्सो मीन्स, बिकॉज इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो what we provide opportunity to the students. Please, participants, please mute your mic. Please, this is also comes under the head of ethics. The ethics of this virtual meeting says that we should listen the resource person very carefully, muting the mics. This is also this ethics. Please mute your mic. So Dr. Nidhi Agarwal, as madam requested, please unmute your mic, mute your audio. So means that we have to generate new questions. That is also part of the research. So research is basically concerned with production of new knowledge on the basis of facts or verification of old facts. Researching जिसको हम कहते हैं, or verification of old facts. It's very important that research helps us. Yes, not audible. I am not audible. No, yes, audible, madam. Audible, ma'am. Somebody said that not audible. No, Okay. So research helps us generating a body of knowledge and designing functionally effective program. You know, you also, why recording is being done? Because on the basis of the recording, you will share with the people. People will say, yes, we want this resource person. So this is in a way you are researching. While identifying the resource persons also you are searching. So preparing any program, research is very, very important. And you know, some of the theories of education is based on their PhD work. That was the research work. They did so systematically, so rigorously that their research work was converted into theories. So that's why it's very important that if we want to implement, formulate any policy, any program, then research is very, very important. You know, this this national policy in education, even in NCERT, we did 63 meetings. And in 63 meetings, we interacted with teachers, with professors, with, you can say, district education officers, with DIET faculty, with the SCRT faculty, with the university faculty, with even local people, that actually what they want in education.
We prepared the report, we shared the report. So it is not only that few people sat and they prepared the National Policy on Education 2020. No, they collected research reports. They collected what actually the people wants, what the teacher want, what are the needs and concerns of the students. So all these things are very important, and for them it is very important that they should be scientifically and rigorous research should be done. And that means that you can do scientifically and rigorous only when you follow the ethical consideration. So ethical consideration, ethic is required in everything, means how you collect the data. Either you are collecting data primary, or you are collecting, analyzing secondary data, which is already existing. For example, many people prepared, analyze the census data. Many researchers analyzes the data by National Family Health Survey. Many researchers analyzes the data already conducted in the field, many research studies. Some people used to collate, prepare a compendium of research. And on the basis of that, they find out certain, you can say, topics, certain research areas. So that is based on the, you can say, secondary research. Relies on empirical evidences, means that verifiable. The measure should be verifiable. When you do the research, it should be verifiable. It is very important. Then better in structured, you use structured questionnaire. You can use semi-structured questionnaire. You can use unstructured questionnaire. If your research design needs structured questionnaire and you are doing unstructured questionnaire using, then ethically this is also not correct, because it becomes a bias. And if it is interdisciplinary, then it is more complex. So it is very important that when we do research, ethics becomes very, very important. Even if we are doing survey, or we are conducting any pure, or you can say applied research, or we are doing on a one cross-sectional research or longitudinal studies. For example, on gender, Margaret Mead conducted a very longitudinal study. She remained with the tribal communities, and then she understood each and every aspects, and then she come out with about the gender. So whether it is a quantitative or qualitative, in all aspects we have to, you can say, find out the ethical. Particularly when we say quantitative research and qualitative research. For example, in quantitative research we ask narrow questions, whereas in qualitative qualitative research we ask more broad and general questions, because there the text will be there, the people will speak, they can speak more. So there will be more generic and more broad questions. In quantitative research, we collect data and we analyze on the basis of number. For example, in quantitative research, either you have a questionnaire of multiple choice, or you have a questionnaire of yes and no, or a questionnaire of, you can say, true and false. So generally, it is more based on the quantitative data. And then we say we find out mean, we find out mode, we found out, you can say, the t-test, or we analysis, any regression analysis can be done. So it is more of a, you can say, number. Whereas in qualitative, we collect data largely in words, text, and images, pictures, description. So there we are using more of description. Maybe later on we can combine that so many number of people said the similar things. But that is more in the terms of text, because this is more qualitative and more in-depth study is there. In quantitative study, the chances of unbiased inquiry is there, because they say true and false facts. There's nothing here and there in between, either it is true or it is a false. But in qualitative research, because it is more in the basis of text, so sometimes you cannot say it is a false or it is a true. It is their opinion, it is their perception, it is their thinking, what they think about it. So that you cannot say that some biasness, some subjectivity will also be there. Then the magnitudes may be more widespread. For example, when you conduct these days, elections have just happened. So people have started imagining how many seats are there.
though they have an unstructured questionnaire, survey method was more used. So wide breadth data can be collected, you can say, in quantitative research, whereas in qualitative research we used to collect, you can say, smaller sample, because that is a very in-depth study is there. And in quantitative we can test the hypothesis, whereas in qualitative we draw out patterns, मतलब what will be the, क्या ट्रेंड, किस तरीके से लोग सोचते हैं। फिर इसमें हाइपोथेसिस के बेस पे आप कंक्लूजन करते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं, और स्टैटिस्टिकल मेथड का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हालांकि आजकल तो क्वालिटेटिव में भी स्टैटिस्टिक्स के लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है। एथिक इसलिए भी जरूरी है कि हमारे यहाँ देखिए हमारा सिस्टम कितना स्ट्रांग है। मतलब वो कहते हैं कि मैं तो जनरली जब बात करती तो कहती हूँ कि इंडिया में हम करते हैं वो बहुत ह्यूज है, यानी बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज की हम बात करते हैं और वो अपना डेटा प्रेजेंट कर देते हैं। यूरोप के तो बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो जो हम करते हैं वो भी बहुत ह्यूज है, और जो हम नहीं करते हैं वो भी बहुत ह्यूज है, क्योंकि कंट्री इतना बड़ा है। तो लेकिन जो करते हैं अगर हम वो भी अगर ईमानदारी से करें तो बहुत अधिक हम जो लोग और अपना प्रोजेक्ट करते हैं उनसे कहीं आगे जा सकते हैं। अब देखिए आपके यहाँ 45,000 इंडिया में कॉलेजेस है, और किसी ना किसी रूप में इन कॉलेजेस में भी रिसर्च वर्क होता है, चाहे एमएड का डेजर्टेशन हो। इवन एमएड के डेजर्टेशन में जनरली हम देखते हैं सेम टॉपिक ले लेते हैं, सेम एरिया ले लेते हैं, और कभी कभी तो ये लगता है कि इन्होंने इवन मुझे लगता है डेटा भी नहीं कलेक्ट किया, उसका नाम बदल दिया, मैंने इस डिस्ट्रिक्ट में किया, तुमने इस डिस्ट्रिक्ट में किया, सो डिस्ट्रिक्ट बदल दिया। तो जो फाल्सिफिकेशन है, फैब्रिकेशन ऑफ डेटा है, वो बहुत अधिक होता है। तो इवन 45,000 कॉलेजेस में जो भी एमएड, पीएचडी, अब तो एमफिल खत्म हो गई है, जिस तरीके की भी एक्शन रिसर्च भी अगर हम कर रहे हैं, तो ऑनेस्टली अगर हम करें तो डेफिनेटली हम एक तरह से गाइड कर सकते हैं सिस्टम को इन ए वेरी इफेक्टिव मैनर। आपके हायर एजुकेशन सिस्टम में भी 1.5 मिलियन टीचर्स हैं। 2019-20 का मेरे पास डाटा है, 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ आपके पास स्टूडेंट्स हैं। इवन 2019 में इसने रिपोर्ट ने बताया कि हमने 38,986 पीएचडी किए, डॉक्टरल यानी हमने डिग्री दी है। तो अगर 38,000 रिसर्चेस की है तो उनमें कितना एथिकल कंसिडरेशन यूज हुआ है, क्योंकि अगर एथिकल कंसिडरेशन यूज हुआ होता तो वो 38,000 कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लोग साइट करते, वो बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ पैरामीटर्स लगाए गए हैं, क्योंकि वो भी अगर जिसने एथिकली स्टडी किया उसकी कोटेशन, उसकी साइटेशन होती है। इसलिए वो कहते हैं कि इंडिया की पोजीशन एससी इमागा कंट्री रैंकिंग में काफी अच्छी थी। उन्होंने 2 लाख से भी ज्यादा 2,12,08,896 क्यूमुलेटिव डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया, और उस डॉक्यूमेंट के रिव्यू के आधार पर हमारी पोजीशन इन साइटिंग ऑफ रिसर्चेस वाज 21। लेकिन जैसे ही हमारा एक एच इंडेक्स आप समझते हैं ना, आजकल एच इंडेक्स निकाला है जेई हैरिच ने 2005 में, हालांकि उसने शुरू किया था जेई हैरिच, HIRSCH। तो उसने एक एच इंडेक्स निकाला जिसका उसका अर्थ है कि कितने हमारे आर्टिकल या रिसर्च पेपर कितने टाइम, कितनी बार साइट किए जाते हैं, उसके आधार पर वो एच इंडेक्स तैयार करते हैं। और उस एच इंडेक्स तैयार करने में हमारी पोजीशन बहुत नीचे आ जाती है। फर्स्ट नंबर पर यूएस है, सेकंड नंबर पर चाइना है। तो इसलिए ना चाइना हर चीज में, ऐसा नहीं है कि वहां प्लेगरिज्म नहीं होगा, वहां फॉल्सिफिकेशन नहीं होगा, होगा। ऐसा कोई कंट्री नहीं बचा है जिसमें इस तरीके की चीजें ना हो, लेकिन वहां पर ईमानदारी से रिसर्च करने वाले भी बहुत अधिक है। मुझे अच्छी तरह याद है एक मेडिकल स्टूडेंट ने यहाँ भी जब उसने एमडी किया तो उसने रिसर्च की और उसने मेरे से डिस्कस किया
और मतलब उसने ओपनली ऑनेस्टली कहा कि मैंने 10 पेशेंट का डाटा कलेक्ट किया और मल्टीप्लाइड बाय 10 वो 100 का डाटा हो गया और मैंने अपनी थीसिस लिख दी और मैं एमडी हो गई। लेकिन when the same student went abroad in US, then she said, now I have realized what is research. कि यहाँ पर ऑनेस्टली मेडिकल फील्ड में रिसर्च होती है, रात और दिन बैठ करके हम ऑब्जर्व करते हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि ज्यादातर इन्वेंशन वहां हो रही है, हम सिर्फ उसको यूज करते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली करने के लिए बहुत ज्यादा रिगर, ऑनेस्टी, बहुत मेहनत की जरूरत है। वो अगर जितने हम ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे रिसर्चेस को साइट करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि एच इंडेक्स में इवन चाइना का रैंक भी ऊपर, जो सेकंड नंबर पर था वो 11वें नंबर पर आ गया, क्योंकि वहां पर भी जो थीसिस, जो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं वो ऑनेस्टी, वो इंटीग्रिटी, एथिकल कंसिडरेशन नहीं पाए जाते। तो इसलिए है कि एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल norms is increasing day by day in the field of research including evaluation. क्यों डे बाय डे बढ़ रहा है? क्योंकि अगर हम सही तरीके से साइंटिफिकली रिगर सोशल रिसर्च नहीं करेंगे, खासतौर से क्लिनिकल जो रिसर्चेज हैं उसमें तो काफी हद तक ऑनेस्टली काम किया जा रहा है, लेकिन जो सोशल साइंस रिसर्च है, जो एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च है, जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च है, उसमें थोड़ा सा ये साइंटिफिक रिगर कम हो जाता है, क्योंकि उसको लोग बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। लेकिन हमारे जैसे देश में, विच इज ए वेरी कल्चरली डाइवर्स कंट्री है, इसमें तो और ज्यादा, हालांकि वेरी डिफिकल्ट टू से दैट टोटली 100% वी विल फॉलो द रिगर, लेकिन जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर डाइवर्सिटी का से निकल करके जो चीज आएगी वो चीज सही मायने में सच्ची यानी ट्रू नहीं होगी। हमारा ऐसा देश है जहाँ कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 22 हमारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी डायलेक्ट्स और लोकल लैंग्वेजेस। किसी ने डाटा दिया है कि हमारे यहाँ 16,000 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं। हमारी पॉपुलेशन तो अब हम तो नंबर 1 पॉपुलेशन हो गए हैं, लेकिन लिटरेसी रेट, बिकॉज इन 2021 द सेंसस शुड हैव बीन कंडक्टेड, लेकिन वो हुआ नहीं कोरोना की वजह से। तो लेकिन फिर भी हमारी लिटरेसी अभी भी बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज से कम है। 74% वो कहते हैं कि 2011 का सेंसस है। कुछ लोगों ने अज्यूम करके अभी जो डाटा दिया वो कह रहे हैं 85% है, लेकिन 85% भी लिटरेसी है। एंड व्हेन वी से लिटरेसी इट मींस ओनली रीडिंग एंड राइटिंग, कि सिर्फ वो लिख पढ़ सकते हैं, छोटा मोटा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो रियल एजुकेशन तो उनके पास अभी भी नहीं है। और कंट्री हमारा ऐसा है कि कहते हैं कि 2 मील पर पानी बदल जाता है और 4 मील पर भाषा बदल जाती है। तो ऐसे देश में एथिकल, रोबस्ट एथिकल रिसर्च करना एक तरह से जरूरी है। हालांकि इट इज ए वेरी चैलेंजिंग भी है, लेकिन चैलेंजिंग चीज को, रिसर्च का तो मतलब ही यही है कि जो चैलेंज है उसको हम संभालें, उसको हम डील करें, तो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एथिकल कंसिडरेशन नहीं है। हर डिपार्टमेंट में, हर कॉलेज में रिसर्च कमेटी है, हर यूनिवर्सिटी में एक इंस्टीट्यूशनल रिसर्च कमेटी होती है, लेकिन वो जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड है वो बहुत सारी चीजों को, आप कह सकते हैं कि उसमें हमारे अपने ही लोग होते हैं, अपने ही, हम उन्हीं को बुलाते हैं जो हमारी रिसर्च को अप्रूव कर दें। जो नहीं बुलाते हैं तो वहां पर फिर रिसर्च स्टडीज अच्छी भी हो रही हैं। क्लिनिकल एरिया में हम जरूर करते हैं, या बहुत सेंसिटिव एरिया में जहाँ रिसर्च हो रही है, जैसे HIV से रिलेटेड आप रिसर्च कर रहे हो, कोई कहीं ब्लड सैंपलिंग पर रिसर्च कर रहे हो, या कहीं आप जो ह्यूमन का इंटीमेट बिहेवियर है उससे रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो, या सेक्सुअल अब्यूजेस पर रिसर्च कर रहे हो, तो वहां थोड़ा सा
व्यक्ति जो है वो प्रोटोकॉल, रिसर्च प्रोटोकॉल को बहुत ज्यादा तरीके से फॉलो करता है। लेकिन जहां जहां सब सोशल साइंस की बात आ जाती है, एजुकेशन की बात आ जाती है, तो वो एक तरह से बहुत कंपल्सरी नहीं है, वॉलेंट्री है, चॉइस है, प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं है कि उसमें सारे डायमेंशंस को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। और खास तौर से जब आप रूरल एरिया में स्टडी करवा रहे हैं, तो रूरल एरिया में तो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है। अभी भी हमारे देश में कोई 2011 में तो 31% अर्बन एरिया था। अब हो सकता है कि 50% तक पहुंच गए हो हम अर्बन एरिया में, लेकिन 50% तो अब भी रूरल एरिया है। तो उस रूरल एरिया में जब हम रिसर्च करते हैं तो बहुत सारा कंसेंट नहीं लेते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और रिस्पेक्ट की वजह से वो हमें डेटा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एथिकली हमने कोई इस तरीके से रिगरस, कोई ना तो उनसे कंसेंट ली, ना उनका डेटा हमें अनोनिमस रखा। तो वो भी एक तरीके से ये है कि अगर हमारी रिसर्च रिव्यू बोर्ड जो होता है वो अगर स्ट्रांग है तो वो हमेशा हमारी चीजों को देखता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग डेटा को बहुत बायसिस, यानी हम जब कई बार पूछते हैं ना, तो आपने ऐसे डेटा क्यों कलेक्ट किया, पहले तो कहते हैं कि हमने रैंडम सैंपलिंग मेथड लिया, लेकिन बाद में कहते हैं कि हमने कन्वीनियंट सैंपलिंग ले लिया। अब मान लीजिए कोई आप वेलफेयर जो स्कीम है गवर्नमेंट की, जैसे कि पिछले उसमें लेक्चर में आपसे बात की होगी कि क्लासरूम ट्रांजैक्शन में हम एसएसए का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, तो अगर या मिड डे मील को हम रिव्यू करना चाहते हैं, या लिटरेसी से रिलेटेड कोई ऐसा एरिया है जो गवर्नमेंट ने गर्ल्स के लिए जैसे शुरू किया है, उसको हम इवेलुएट करना चाहते हैं। अब उसमें हम पर्पसिव या कन्वीनियंट सैंपलिंग लेकर के रिसर्च करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, तो डू यू थिंक दैट डेटा विल बी ए ट्रू पिक्चर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दैट स्कीम? क्योंकि हमने कन्वीनियंट सैंपल लिया, जिस एरिया में बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था हमने वो ही लोग ले लिए, तो रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है, और हम कह देंगे जी ये स्कीम तो बहुत अच्छी चल रही है और बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है। तो अगर बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कहा है कि 59% गर्ल्स इन इंडिया आर एनीमिक। तो वो क्यों हो रहा है? आपका डेटा तो कह रहा है कि मिड डे मील बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें कि न्यूट्रिशन का जो ध्यान दे रहे हैं हम। मिड डे मील स्कीम इसीलिए तो शुरू हुई थी कि बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए और बच्चों का न्यूट्रिशनल लेवल भी बढ़ जाए, लेकिन वो तो बढ़ा नहीं। 2000 जो फोर्थ सर्वे था उसमें 53% था और अब 59% हो गया है, तो और बढ़ गया। या तो अवेयरनेस नहीं है, या अवेयरनेस है तो कहीं ना कहीं मीडिया का इम्पैक्ट है, या आपका जो आप दे रहे हैं मिड डे मील उसमें आपका नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि रूरल एरिया में कई बार क्या है कि आपको सही डाटा नहीं मिलता, आप सही तरीके से फ्रैंक ओपिनियन नहीं देते, कन्वीनियंट सैंपलिंग आप यूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे कि रिसर्च पर्टिकुलर इन ए कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ की डाइवर्सिटी बहुत है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, रूरल डाइवर्सिटी है, उन सब में रिसर्च स्टडी करते समय हमें एथिकल नॉर्म्स को जितना हो सके हमें जरूर उसको अप्लाई करना चाहिए। सो व्हाट इज एथिक्स? एथिक है क्या? Ethic is a branch of philosophy that is concerned with the moral principles and values which govern our belief, action and decisions. यानी ये एक फिलोसफी की ब्रांच है विच कंसर्न विद मॉरल प्रिंसिपल, की हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स क्या है, और ये मॉरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज ही हमारे बिलीफ यानी हमारी सोच क्या है, हम क्या एक्शन लेंगे, क्या हम डिसीजन लेंगे, इन सब से कंसर्न है, इन सब को गवर्न करते हैं, इन सब को बनाते हैं। तो ये एथिक कहलाता है। एथिक रेफर टू वेल बेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स में यही तो है ना कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। So ethics refer to well-based standard of right and wrongs that prescribe what human ought to do, usually in terms of rights, obligations
बेनिफिट टू सोसाइटी, फेयरनेस और स्पेसिफिक वर्चूज। यानी जो भी हम, ये हमारा राइट है, ये हमारे अधिकार है, ये हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज हैं, ये हमें बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा इससे। इससे हमारी सोसाइटी में एक तरह से फेयरनेस होगा, इक्वालिटी आएगी। तो एथिक्स हमें बताता है कि राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या ह्यूमन बीइंग को, रिसर्चर को नहीं करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज एथिक्स। नॉर्म्स फॉर कंडक्ट दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। यानी वो नॉर्म्स, वो नीतियां, वो प्रिंसिपल्स जो कि हमें बताते हैं, हमें डिस्टिंग्विश करने में, अंतर करने में मदद करते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या स्वीकार कर सकते हैं और क्या हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रिसर्च में अगर हम सारी की सारी अनएक्सेप्टेबल चीजों पर अगर रिसर्च कर रहे हैं और रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं, तो भी वो सही तरीके से एथिक्स नहीं है। यानी एक्सेप्टेबल का मतलब है कि जब हम रिसर्च करें तो हमारा डिजाइन भी एक्सेप्टेबल हो, हमारा सैम्पलिंग भी एक्सेप्टेबल हो, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एग्री करें। तो सारी की सारी चीजें हमें एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। पार्टिसिपेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं, हम फोर्सफुली उनको कर रहे हैं जो कि उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये एक एथिक्स का नॉर्म्स है। Ethics may be defined as a method, procedure, or perspective for deciding how to act for analyzing complex problems. यानी कॉम्प्लेक्स चीजें, रिसर्च का तो मतलब वही है कि अगर सिंपल चीज है तो सामने दिखाई देती, ये पेड़ है, इसके फल लगे हुए हैं, लेकिन इस पेड़ के फल इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि सर का, मोहम्मद साहब का मुझे पेड़ दिखाई दिया। तो इस पेड़ के फल अच्छे क्यों हैं, इस पेड़ के फल अच्छे क्यों नहीं है? बीज मैंने दोनों में एक जैसा डाला था, क्या कारण है? क्या खाद की प्रॉब्लम है? क्या कोई कीटनाशक जानवर है जिससे कि फल बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं? सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ही ढूंढने के लिए हम रिसर्च करते हैं। सो व्हाइल द सब्जेक्ट ऑफ एथिक्स इज कॉम्प्लेक्स and has in fact generated volumes of discussion, at the core ethic rests on human and humane consideration. यानी जो भी आप रिसर्च करेंगे, वो कोई भी रिसर्च आप देख लीजिए, आप वैक्यूम में नहीं करेंगे। आपका कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, और वो ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होगा? मानव से, यानी हम मनुष्यों से। और ह्यूमेन भी होना चाहिए। ह्यूमेन का मतलब है कि उसमें किसी भी तरीके का कोई वायलेंट, कोई क्रूअल, कोई किसी तरीके का अत्याचार भी नहीं होना चाहिए। तो इसको हम इसलिए एथिक्स कहते हैं। एथिक्स में, वैल्यू में, मॉरल हम एक साथ यूज करते हैं, इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में भी तो है ना कि एथिक्स आर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल। तो क्या इनमें कुछ अंतर भी है या ये तीनों एक ही हैं? और तीनों एक ही है तो हम तीन शब्द क्यों यूज करते हैं कि एथिक्स, वैल्यूज एंड मॉरल्स? तो कोई बता सकता है कि क्या अंतर है इनमें, एथिक में, वैल्यू में, मॉरल में? लेट्स हैव ए लिटिल डिस्कशन। कोई भी बता दे, जो जो आप बताएंगे वो सच है। ये Then ethics are the rule हाँ, वेरी गुड। and values are the traditional बहुत things. बहुत हद तक सुरभि जी आप सही हैं। और कोई? भाई हम 91 लोग हैं, रोज ही तो यूज करते हैं। चलिए, जो सुरभि जी ने बताया उसी को आगे बढ़ाते हैं। एथिक्स आर रूल्स, वेरी राइट, रेफर्ड बाय एक्सटर्नल सोर्सेस। आपका है ना कोड ऑफ कंडक्ट, वो आपका एथिक्स में आता है। आपको समय पर स्कूल आना है, समय पर कॉलेज आना है, समय पर क्लासेस लेनी है, रिसर्च करवानी है तो आपको सही टॉपिक चुनना है, ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट है। सो एथिक रेफर टू रूल्स प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल सोर्सेस, जिनको कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। वर्क प्लेस पर है, या आपके अपने रिलीजन में है, या आपके सोसाइटी में है, भाई कोड ऑफ कंडक्ट। तो एक्सटर्नल जब सोर्सेस देते हैं तो वो एथिक कहलाते हैं।
मॉरल्स क्या होते हैं? आर डिफाइंड बाय द सोसाइटी, व्हाट द सोसाइटी वांट्स। यानी कोड ऑफ कंडक्ट तो है, भाई टाइम से आओ। मॉरल का मतलब है कि सदा सच बोलो, जैसे मॉरल सोसाइटी में रिस्पेक्ट अदर्स, लोगों की रिस्पेक्ट करो, ये सोसाइटी की है। सच बोलो। वैल्यू क्या है कि आप किसको वैल्यू देते हो? जो सोसाइटी कह रही है उसको वैल्यू दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? जो एथिक्स है वो उसको वैल्यू दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? सो वैल्यूज आर, you can say, personal, based on your personal thinking. So what is, but all are related to, they are guiding, they are related to, you can say, right and wrong. कि what is right and what is wrong. Only the difference is कि वो एक तरह से एक्सटर्नल सोर्सेस से होते हैं एथिक्स, मॉरल जो है वो सोसाइटी की तरफ से होते हैं, और वैल्यूज व्यक्ति के इंडिविजुअल होते हैं कि वो किस चीज को कितना वैल्यू देता है। कोई कहता है कि मैं ऑफिस में जाकर के, कॉलेज में जाकर के टाइम से पढ़ाता हूँ, यानी चाहे मैं 45 मिनट का क्लास लूं या ना लूं, पर मैं 30 मिनट में ही अपना सारा सिलेबस कवर कर देता हूं, तो वो उसकी वैल्यू तो ठीक है, लेकिन एथिकली ही इज नॉट करेक्ट। एथिक्स कह रहा है कि आपको 45 मिनट क्लास में होना चाहिए, आपको टाइम से क्लास में आना चाहिए। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा एथिक्स में। बट सभी एथिक्स हो, मॉरल हो, वैल्यू हो, all are giving importance to, you can say, right and wrong, acceptable and non acceptable. 4 pillars of ethics बहुत important है। One is honesty, यानी कोई भी रिसर्च हम करें, कोई भी टॉपिक, एक तो हम जब भी कोई टॉपिक सेलेक्ट करें, कोई रिसर्च डिजाइन हम करें, कोई डेटा कलेक्ट करें, तो ऑनेस्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एथिकल पिलर। कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी जहां से भी, जिससे भी हम बात करें, जिस भी तरीके की हम बात करें, उस डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है, इवन कॉन्फिडेंशियलिटी अदर वे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत बार देखते होंगे स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, कोई चीज शेयर करते हैं, सर दिस इज माय पर्सनल प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प मी। हम क्या करते हैं कि हम दूसरे टीचर को कभी बता देते हैं, अरे वो फलाना स्टूडेंट आया था, उसने कहा कि मेरा ना फलाने के साथ ब्रेकअप हो गया है, वो उसका मतलब वो इस तरीके का लड़का है। सो दैट मीन्स यू आर नॉट मेकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्ड। कॉन्फिडेंशियलिटी, जब डाटा जो भी कलेक्ट करें उसको मेंटेन कर, क्योंकि तभी तो आपको लोग, जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आपके सैंपल में आ रहे हैं, वो ट्रू डाटा देंगे। उनको लगेगा कि मेरा तो बातचीत ये आगे फैला देंगे, मेरे नाम से फैला देंगे, तो वो कभी भी आपको सही डाटा नहीं देंगे। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके तो फायदा हो रहा है और जो डाटा दे रहा है उसका कोई नुकसान हो रहा है, तो अगर उसका नुकसान होगा तो वो कभी भी आपको डाटा नहीं देगा। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट एवरी स्टेज, एवरी स्टेप, वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नाइदर एट द डिजाइनिंग स्टेज, नॉर एट द कलेक्टिंग स्टेज, nor at the analytical analysis stage, nor at, you can say, dissemination stage. So these are four more important pillars which are called, that these are ethical pillars are there. So therefore ethics is very much needed for studying effective treatments, investigating behavior and improving lives. If these ethical considerations are not taken into consideration, then we cannot come out with effective treatment. We cannot investigate the behavior. We cannot improve the life of the people, because already our research is biased. Research, if it is genuinely concerned with other people's quality of life. Why do we conduct research? Because we want to improve the quality of life of the people, of the students. जैसे अब आप अगर if you are conducting a study on teaching methodology, which methodology is effective methodology, then definitely you are improving the quality of the students' learning. And learning means quality of life in general. So researches means that improvement of the quality of life of the people, if it is done genuinely. Researchers are expected to be people of integrity and undertake research without negative effect
on others. यानी अगर ethical norms को हम follow करेंगे, then researcher की भी integrity बनी रहेगी. उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की है, आई विल कोट दैट स्टडी. अरे उसने स्टडी की है, उसकी स्टडी को काहे कोट करना, वो तो स्टडी आई डोंट थिंक वेदर इट इज ए करेक्ट और नॉट. सो एथिकल कंसिडरेशन से रिसर्चर की भी इंटीग्रिटी बढ़ती है, और रिसर्चर जो है वो कोशिश करता है कि कोई भी अनएथिकल बिहेवियर वो ना करे, उसको प्रोहिबिट करे. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So research ethics refer to a complex set of values, standards. क्योंकि वो है ना कि आपने बाहर वाले ने तो प्रिंसिपल बना दिए, लेकिन अगर मैं वैल्यू नहीं कर रही हूं तब भी वो प्रिंसिपल कोई काम के नहीं है. So ethics refer to complex set of values, standards and institutional scheme that help constitute and regulate a very scientific activity, means scientific research study. So it is that there should be no pressure, we should promote autonomy of researcher to observe ethical norms. क्योंकि researcher भी दबाव में होता है, बहुत सारा दबाव है, 3 साल में खत्म करना है, और उसको दबाव कि नहीं 3 की जगह मुझे 2 साल में ही खत्म करना है. और कहीं से भी पार्टिसिपेंट्स का भाई अभी डेटा कलेक्ट कर सकते तो कर लो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो. When nobody is watching me, before being honest to the था, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब कोई देख नहीं रहा हो तब अगर हम ऑनेस्टली काम करते हैं तो एक्चुअल में हम वही एथिक्स. जब कोई देख रहा हो, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मैंने एग्जामिनेशन में कोई नकल कॉपिंग नहीं की क्योंकि वह कोई मटेरियल ही नहीं था, या जो ऑब्जर्वर था वो मुझे देख रहा था, तो वो मैंने ऑनेस्टली कॉपिंग नहीं की, वो ऑनेस्टी नहीं है. मैंने कॉपिंग नहीं की, मटेरियल भी था, ऑब्जर्वर भी नहीं था, तब भी मैंने कॉपिंग नहीं की, तो इसका मतलब वो मेरे एथिकल, वो मेरी वैल्यूज है, वो मेरे प्रिंसिपल्स हैं. तो इसलिए बहुत अच्छा आपने कहा कि जब कोई ना देख रहा हो और तब हम ऑनेस्टली काम करें, दैट मीन्स दैट वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग ethical consideration and strong value system. It is very important. So it is also important to protect and promote the human rights of the participants, the needs of respect, the needs of those who are your sample, improve quality, legitimacy and credibility of the research is very very important. And therefore we have to develop a appropriate mechanism for self regulation. किसी और के रेगुलेशन से नहीं. जब हम दबाव में काम करते हैं ना तो हम इंजॉय नहीं करते हैं. रिसर्च वो होनी चाहिए जिसमें इंजॉय करें. जैसे आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी, तो इसमें जो आमिर खान है वो कहता है कि ये मेरा पैशन है, ये मेरी एक तरह से मेरा सेल्फ रेगुलेशन है, ये मेरा इंटरेस्ट है. इसी तरीके से रिसर्च भी तभी अच्छी हो सकती है जब हमारा पैशन हो, जब हमारा इंटरेस्ट हो, हम इंजॉय भी कर रहे हो रिसर्च को. आप कभी भी देख लीजिए, अगर आप टीचिंग इंजॉय करते हैं तो आपको टीचिंग बहुत अच्छी लगती है. इंटरेक्शन इंजॉय करते हैं तो इंटरेक्शन बहुत अच्छी लगती है. बोर्ड पर लिख करके आप बताते हैं तो आपको तब ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है. तो इसलिए ऑनेस्टी होना, सेल्फ रेगुलेशन होना, ये और पैशन होना एक तरह से रिसर्च में बहुत जरूरी है. इसलिए कहते हैं कि व्हाट यू डिसाइड टू रिसर्च and how you conduct that research involve key ethical consideration. There are set of principles that guide the researcher to design, conduct and publish research in a holistic manner. So ethical considerations are very very important. There were studies where they have not followed ethical considerations. मैं 2-3 स्टडी, हालांकि हिस्टोरिकल स्टडीज है, लेकिन फिर भी मैं बात करना चाहूंगी. जैसे नाजी की स्टडी का बहुत जिक्र करते हैं. नाजी फिजिशियन एंड साइंटिस्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 performed horrifying experiments on thousands of imprisoned people in concentration camp. जी रॉय, डॉक्टर राय, यू आर राइट. सो उन्होंने बहुत हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट किए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जो इम्प्रिजन्ड थे, जो जेल में उन्होंने बंद किए थे, एंड दैट स्टडी वाज इन 1942-45. और रिसर्च के नाम पर उन्होंने लाइव वायरसेस
फ्रीजिंग टेम्परेचर में उन इम्प्रिजन लोगों में इंजेक्ट कर दिए थे, पॉइजन इंजेक्ट कर दी थी, मलेरिया के पैरासाइट इंजेक्ट कर दिए थे, अनटेस्टेड ड्रग्स इंजेक्ट करके ऑन द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंटल, कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बिकॉज देवर इम्प्रिजन, वो ऑलरेडी जेल में थे, तो उनको उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया और उससे इनह्यूमन एक तरह से ट्रीटमेंट हुआ। बहुत सारे लोग ट्रॉमा में आ गए, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, डेथ्स हो गई इन मैनी केसेस। और ये पार्टिसिपेंट जो है हमेशा इनके पास कोई फॉर्मल कंसेंट नहीं थी, उनसे कोई कंसेंट नहीं ली गई कि भाई हम हाँ एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हैं। जैसे अभी कोरोना में जब बहुत सारे वैक्सीन के लिए टेस्टिंग किया गया था तो लोगों से कंसेंट ली गई थी, उनको बताया गया था कि क्या इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो हालांकि बाद में कुछ वो जो डॉक्टर्स थे, फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, उनको ट्रायल भी किया गया फॉर देयर क्राइम। इसी तरीके से एक बहुत इनह्यूमन स्टडी हुई थी, टस्की सिफिलिस स्टडी, जो 40 साल तक चली थी, यानी 1932 में शुरू की गई थी और 1972 तक वो स्टडी कुछ 400 to 600 ब्लैक मैन पर ये स्टडी की गई थी। और इस स्टडी में सिर्फ क्या कहा गया था कि जितने भी इन लोगों के देखने वाले डॉक्टर्स थे उन सब से कहा गया कि ये सिफिलिस के पेशेंट हैं, इनको कोई मेडिसिन नहीं देना। दे वांट टू सी दैट सिफिलिस ऑटोमेटिकली क्योर होती है या नहीं होती है। हालांकि बाय 1932 पेंसिलिन का आविष्कार हो गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने इन लोगों को सिर्फ पानी दे दिया, जैसे कहते हैं ना कि प्लेसेबो इफेक्ट, कि ये एक आपकी मेडिसिन है, और सिर्फ ये कहा गया कि आपको हम फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जबकि ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं था। और फिर ये कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो आपकी फ्री बरियल सर्विसेज होंगी, जबकि जिस भी व्यक्ति की ऑटोप्सी होती है उसकी बरियल सर्विसेज फ्री होती थी। तो उन लोगों पर इस तरीके के सिफिलिस की स्टडी में कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, और जो 40 साल तक चली। और वो स्टडी भी बंद कैसे हुई, जब मीडिया में ये सब चीजें हाईलाइट होने लगी, तब जाकर के 1972 में ये स्टडी बंद हुई थी। और 65 साल बाद प्रेसिडेंट क्लिंटन ने पब्लिकली अपोलोजाइज किया था उन फैमिलीज के साथ, उन लोगों के साथ। हालांकि उसमें बचे तो बहुत कम थे, ज्यादातर लोग जो है किसी न किसी रूप में उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसी स्टडी इन ह्यूमन स्टडीज एक और की गई जो गुट मेला में, हालांकि उसको बैन कर दिया, लेकिन फिर भी चुपके चुपके एक और स्टडी गाउट मेला में हुई। उसमें वो पेंसिलिन का इफेक्ट देखना चाहते थे, और उन्होंने डेलिबरेटली विद द हेल्प ऑफ इन्फेक्टेड प्रोस्टिट्यूट से सिफिलिस को से उनको इन्फेक्ट करवाया गया। और उनके बाद वो टेस्ट करना चाहते थे। हालांकि 2 साल के बाद उस स्टडी को भी, क्योंकि मीडिया में आ गया, मीडिया में बहुत हाइप हो गया, तो उनको भी उन्होंने एक तरह से बंद करना पड़ा। इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में भी एक स्टडी हुई, जो कि उन्होंने 22 अनसस्पेक्टेड एल्डरली पेशेंट्स में कैंसर के वायरसेस, लाइव वायरसेस इंजेक्ट कर दिए गए टू सी द इम्पैक्ट कि कैंसर कैसे फैलता है, क्या स्टडी करते हैं विदाउट एनी कंसेंट। एक हमारे टीचर एजुकेशन में भी एक स्टडी हुई, हालांकि है ये बाहर की स्टडी, स्टेनले मिलीग्राम ने एक स्टडी की थी। वो ये देखना चाहते थे अथॉरिटी और कंट्रोल का क्या असर पड़ता है लर्निंग पर। तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कुछ लोग सेलेक्ट किए, कुछ टीचर सेलेक्ट किए, कोई कंसेंट नहीं ली, कि जो बच्चे एक गलती करेंगे उसको एक शॉक दिया जाएगा, जो दोबारा गलती करेंगे वो शॉक की डिग्री बढ़ जाएगी, और जो 3 बार करेंगे तो डिग्री और हाई हो जाएगी इलेक्ट्रिक शॉक की। हालांकि उस स्टडी में किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया गया, लेकिन मेंटली इमोशनली दे वर मेड दैट अगर एक गलती करोगे तो ये होगा, दूसरी करोगे तो ये होगा। तो उससे पाया गया कि इवन इन प्लेसिबो इफेक्ट में भी मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस स्टूडेंट्स में बढ़ गया था। इसी तरीके से सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक बिना किसी कंसेंसस के, बिना बताए
स्टडी की कुछ आर्म्ड ऑफिशियल्स पर, सिटीजन पर, कि अगर हम कुछ ड्रग्स इंजेक्ट कर दें, जैसे कहते हैं ना लाई डिटेक्टर टेस्ट, तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, ये अगर पकड़े जाते हैं तो ये हमें बता सकते हैं कि किस तरीके की प्लानिंग उनकी कंट्री में हो रही है, और वो भी बिल्कुल अनअवेयर सिटीजन्स थे। तो ये भी ऐसी स्टडी जो थी, एक तरह एथिकल कंसिडरेशन को उन्होंने बिल्कुल ताक पर, जिसको कहते हैं ना ताक पर रख दिया था। इसीलिए इन सब अनएथिकल बिहेवियर और रिसर्चेस को देखते हुए 1964 में इंटरनेशनल लेवल पर गाइडलाइंस बनाई गई। न्यूरमबर्ग ट्रायल जो नाजी एट्रोसिटी के बाद, ये एक न्यूरमबर्ग कोड 1946 में भी बनाया गया, लेकिन 96 में हेलेंस्की, डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की ने एक अच्छी आप कह सकते हैं कि एथिकल गाइडलाइंस इन्होंने बनाई, और WHO ने भी बनाई। मेडिकल साइंस वालों की तो अपनी गाइडलाइंस ही है। इन 1966 में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पर बनाई गई कि नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment on the name of the research। 2017 में भी ब्रिटिश सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन ने अपनी गाइडलाइंस बनाई। इंडिया में भी हालांकि 1993 में ये शुरू हो गया था कि कुछ गाइडलाइंस बनाई जाए, लेकिन वॉलंटरी बेसिस पर ही गाइडलाइंस बनाई गई। सोशल साइंस में एक गाइडलाइंस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर बनाई है कि नेशनल कमेटी फॉर एथिक्स इन सोशल साइंस रिसर्च पर गाइडलाइंस बनाई गई, जो 2004 में रिवाइज की गई है। इसी तरीके से हर आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट का एक इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होता है जो एथिक्स को ध्यान में रख करके करता है, या एकेडमिक इंटीग्रेटेड एंड रिसर्च क्वालिटी यूजीसी ने एक गाइडलाइंस निकाली है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव देयर ओन, यू कैन से एथिक्स कमेटी है जो देखती हैं, बट problem is that most of the time the consent is verbal in nature and बहुत सारी चीजें हैं कि जो वॉलेंट्री हैं, बहुत प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, प्रीरिक्विजिट नहीं है, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो फॉलो नहीं होती है। इसलिए अब ये है कि एथिक्स पर, जैसे अभी NEP 2020 के बाद जब रिसर्च पर फोकस किया गया है, तो एथिक्स पर भी फोकस किया जा रहा है। इसलिए एथिक के 4 प्रिंसिपल्स, मॉरल प्रिंसिपल है। पहला है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन मैलिफिसेंस, यानी रिसर्चर मस्ट नॉट कॉज हार्म टू द पार्टिसिपेंट इन पर्टिकुलर एंड टू पीपल इन जनरल, दैट इज वन प्रिंसिपल। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस, यानी रिसर्चर शुड मेक ए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि आप रिसर्च कर रहे हैं अपनी PhD करने के लिए, हालांकि ज्यादातर यही होता है कि मेरी PhD हो जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है उसका कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। लेकिन मॉरल प्रिंसिपल ये है कि उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सोसाइटी को, लोगों को, जिन पर आप कर रहे हैं उनको फायदा होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, रिसर्चर मस्ट एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यानी जो सैंपल जिसका ले रहे हो, जो आपका आता है सैंपल में लोग, उनकी डिग्निटी, उनका राइट्स, उनकी रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए। एंड देन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, द बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ रिसर्च शुड बी फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, यानी ऐसा ना हो कि रिस्क तो पार्टिसिपेंट्स पर और बेनिफिट अपने ऊपर। तो रिस्क भी है तो वो भी जस्टिफाइबल होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और बेनिफिट है तो उसको भी शेयर करना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत रिसर्च उन पर करें जो बहुत एसेंशियल है, यानी ऐसी चीजों, ऐसा लिटरेचर, ऐसा टॉपिक ले जो एक तरह से समाज को, सोसाइटी को, नेशंस को कुछ ना कुछ देने वाला है, यानी एसेंशियल है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे उसको कहते हैं ना सोशल जस्टिस है। जब तक रिसर्चर की एबिलिटी ना हो, नॉलेज ना हो, कमिटमेंट ना हो, तो रिसर्च को नहीं करने देना चाहिए। इसलिए सबसे पहले रिसर्चर को रेडी, जैसे कहते हैं ना आजकल हम 5+3+3+4 है कि रेडीनेस प्रोग्राम, रेडीनेस फॉर स्कूल, इसी तरीके से रिसर्चर की ट्रेनिंग
होनी चाहिए, जिससे जिससे कि ही और शी कैन एक्वायर एडिक्वेट नॉलेज, एबिलिटी एंड स्किल्स फॉर अंडरटेकिंग एसेंशियल रिसर्च. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन नॉन एक्सप्लॉयटेटिव हो, एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एंड टोटलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो. ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखना एक एथिकल प्रिंसिपल है. इसलिए कहते हैं कि इवैल्यूएट कंटिन्यूअसली फॉर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, efficiency and acceptability, accessibility and quality of that area जिसमें हम काम कर रहे हैं. कंटिन्यूअसली देखना है सेफ्टी पार्टिसिपेंट्स की है कि नहीं, क्या इफेक्टिव है या नहीं है, क्या एफिशिएंट भी है, ऐसा ना हो कॉस्ट बहुत अधिक है और एफिशिएंसी उसकी बहुत कम है. एसेसिबिलिटी भी है कि भाई सबके पास जब ये रिजल्ट आएगा तो क्या सब तक पहुंच पाएगा जिनको मैं पहुंचाना चाहता हूँ, चाहती हूँ. और क्वालिटी भी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. मस्ट कंसिडर एथिकल, लीगल एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स. क्योंकि लीगल भी बहुत जरूरी है, एथिकल के साथ ये भी जरूरी है. वन ऑफ द एथिकल इज कि वो लीगली भी करेक्ट हो. यानी कल को अगर आपका लीगली सही नहीं है तो कोई कोर्ट में ले जा सकता है. तो दैट शुड बी लीगली एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से भी होना चाहिए. तीसरा ये कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड सोशल ग्रुप. जब हम कलेक्ट, अरे ये तो वीमेन है, अरे ये तो ट्रांसजेंडर है, अरे ये तो डिसेबल्ड है, तो कोई सोशल ग्रुप है, ये तो रूरल एरियाज है, ये तो अर्बन एरियाज है, ये क्या बात करेंगे, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, आप अपनी मर्जी से लिख लो. तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इवन रिसर्चर को टॉपिक देते समय और पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन करते समय. नो माइनर बिलो द एज ऑफ 18 शुड बी ए मेंबर ऑफ रिसर्च टीम. आप जो रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेटर लगाते हैं, तो कोई भी बच्चा या बच्ची 18 साल से कम आपके इन्वेस्टिगेटर नहीं होने चाहिए. रिसर्च इन्वॉल्व्स ह्यूमन सब्जेक्ट्स, so must be conducted after appropriate ethics education and training. क्योंकि कब जो भी करेंगे, अगर जानवर पर भी कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव आपका है कि आप ह्यूमन पर करेंगे. बाद में कोई भी मेडिसिन टेस्ट करते हैं, चूहों पर करते हैं, खरगोश पर करते हैं, किसी पर भी करते हैं, तो उसका भी मतलब है कि वो ह्यूमन बीइंग के लिए तो कर रहे हैं. सो क्योंकि रिसर्च इन्वॉल्व्स ह्यूमन सब्जेक्ट must be conducted after appropriate ethic education and training. That is very very important. So type of ethical issues are, सबसे पहले है कि choose a research topic. जब आप टॉपिक चुनते हैं तो वो मैंने कहा ना कि ऐसा होना चाहिए जो एसेंशियल है. उसके ये सोचना कि इस टॉपिक से क्या बेनिफिट होंगे, इससे किसको बेनिफिट होगा, क्या इससे मैं किसी को हार्म तो नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट हार्मिंग एनीवन. सो चूजिंग द रिसर्च टॉपिक, द रिसर्चर मस्ट बी सर्टन दैट इट इज विद इन हिज और हर स्किल एंड रेंज. यानी पहले तो कि बेनिफिट किसका कितना होगा, किसको होगा, किसी को हार्म तो नहीं करेगा, और ये मेरी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्किल और नॉलेज के रेंज में भी है या नहीं है. मैं जानता हूं नहीं, मैं हूँ सोशल साइंस की और मैंने टॉपिक ले लिया साइंस का, उसके एरिया के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, तो वो भी सही रिसर्च नहीं है. सेलेक्टिंग ए रिसर्च ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट रिसर्च शुड बी फिजिबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टारगेट ग्रुप. यानी फिजिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन सेकेंड इज इन एथिक इश्यूज नीडेड टू बी फ्लैग्ड इन लिटरेचर सर्च. यानी हम क्या करते हैं कि बहुत थोड़ा सा लिटरेचर सर्च करते हैं. एक्चुअल में रिसर्च टॉपिक जब हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें लिटरेचर सर्च क्यों करते हैं, क्या जरूरत है 5, 7, 10, 20 लिटरेचर को. बल्कि हम तो कई पीएचडी के थीसिस में देखती हूँ कि 40-50 पेज तो रिसर्च रिव्यू के कर देते हैं. क्या पढ़े हैं? एक्चुअली उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप इससे रिलेटेड पहले लिटरेचर को रिव्यू करें, पढ़ें, फिर सोचें कि कौन सा ऐसा एरिया है जिस पर मुझे रिसर्च करनी चाहिए इन सबको पढ़ने के बाद. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर ए वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर.
If only include literature in India but not literature available abroad, then also it is not your ethical. यानी जो बाहर भी रिसर्च हुई है उसको भी देखें, जो हमारे कंट्री में रिसर्च हुई है उसको भी देखें, और एक अच्छी तरह से उसका रिव्यू करें, और उसके बेसिस पर हम अपना टॉपिक भी सेलेक्ट करें, और जब टॉपिक सेलेक्ट करें तो उससे देखें कि क्या फायदा होगा, किसको होगा और क्या हार्म होगा, है ना. So to avoid biases, select a good spread of material, research material. We must include full detail of all the items in the literature. क्या उसका सैंपल था. अगर उसने 10 आदमियों पर लिटरेचर स्टडी की है तो वो आपको फायदा थोड़ी देगा. तो कितना सैंपल था, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, क्या हाइपोथेसिस थे, क्या उसकी फाइंडिंग्स आई. इसलिए फुल डिटेल ऑफ ऑल द आइटम्स इन द लिटरेचर रिव्यू शुड बी इंक्लूडेड. This is only ethically correct, but also help to avoid inadvertent plagiarism. यानी अगर इस तरीके से हम करेंगे ना तो प्लेजराइजेशन से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं. One cannot allow personal likes and dislikes in selecting material. हम क्या करते हैं कि जो हमें अच्छी लगती है वो रिसर्चेज इंक्लूड कर लेते हैं. नहीं, वाइड रेंज ऑफ अगर रिसर्च रिव्यू करेंगे तभी हमें एक तरह से करेक्ट पिक्चर मिलेगी. फिर रिसर्च डिजाइन कैसा है, यानी डिजाइन जो है वो फेयरली किस तरीके का डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल है, कोसाई एक्सपेरिमेंटल है या नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है. तो वो डिजाइन हमने वो कैसा है वो भी एथिकली करेक्ट होना चाहिए. एथिकली पर्सपेक्टिव एंश्योर दैट देयर आर नो distortion in framing the research questions. Research design are subject not only to ethical review but more importantly to scientific review भी होना चाहिए. यानी एक तो ethical review तो है ही, पर scientifically भी correct होना चाहिए. सब steps starting from selection of the topic to the you can say data collection, analysis plan, report writing and dissemination. तो सारे के सारे steps जो है वो scientifically correct होने चाहिए. A scientifically sound research design is very, very important because then you will definitely, follow the ethical norms. So ethics in sampling, in method of data collection, in adopting statistical technique, in all stages, the design should be ethical and scientifical. यानी ethics के साथ साथ वो scientifically भी करेक्ट होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो रिसर्च स्टडी जो आएगी वो एथिकली एंड साइंटिफिकली करेक्ट है. सो गेटिंग नेक्स्ट स्टेज, वंस वी हैव प्रिपेयर्ड द डिजाइन, वी हैव सेलेक्टेड द टॉपिक, मीन द रिसर्च एरिया, देन वी हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द एथिक कमेटी. कमेटी मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट इन इट्स फंक्शनिंग. यानी ये हर इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी कमेटी बनाए वो कमेटी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. किन को रखा है, क्या क्वालिफिकेशन है उनकी, क्या वो रियली अनबाइस्ड है, तो उस तरह की रिसर्च कमेटी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग है. कंसिडर लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री एज वेल एज इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड. तभी तो आपकी रिसर्च को वैल्यू मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी तो इंटरनेशनल आपके रिव्यूअर होते हैं, इवैल्यूएटर भी होते हैं. तो नॉर्म्स जो है वो नेशनल भी हो और इंटरनेशनल नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए और लॉज को एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए वो कमेटी उसको रिव्यू करे. कमेटी मस्ट हैव द राइट टू मॉनिटर ऑनगोइंग स्टडीज एंड द रिपोर्ट्स. यानी ज्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बार अप्रूवल हो गई उसके बाद उस कमेटी का रोल खत्म. ऐसा नहीं होना चाहिए. उस कमेटी को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए स्टेप टू स्टेप कि भाई इन्होंने डेटा जो इन्होंने सैंपल जो सेलेक्ट किया था क्या वही सेलेक्ट किया जो इन्होंने प्रपोजल में डाला था, क्या उसी तरीके से डेटा कलेक्ट किया या कोई और तरीके से तो नहीं किया, क्या इन्होंने एनालिसिस सही किया, क्या सही टेक्निक्स लगाए या नहीं लगाए. तो ये देखना भी बहुत जरूरी है. फिर
नेक्स्ट जो एथिकल कंसिडरेशन है वो वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन है। यानी जो भी आप सैंपल सब्जेक्ट, रिसर्च सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, वो फ्री है टू चूज टू पार्टिसिपेट इन योर स्टडी विदाउट एनी प्रेशर और कोवर्शन। वो पार्टिसिपेंट्स एनी टाइम कैन विड्रॉ फ्रॉम योर स्टडी, यानी आपकी स्टडी से वो कभी भी अपने आप को विड्रॉ कर सकता है, कभी भी आपकी स्टडी को छोड़ सकता है, और उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होनी चाहिए। पार्टिसिपेंट्स डू नॉट नीड टू प्रोवाइड रीजंस टू लीव, यानी उनके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि वो कारण बताएं कि वो क्यों छोड़ रहे हैं। और उन पार्टिसिपेंट्स को ये भी क्लियर होना चाहिए, जो सब्जेक्ट्स जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि रिसर्चर उसको कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से ना डराए कि अगर आप छोड़ देंगे तो ये इसका रिपरकशन होगा, अगर रिफ्यूज कर देंगे तो आपको ये हानि हो जाएगी। वो भी कोई किस तरीके की कोवर्शन नहीं होनी चाहिए। उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करें और उसके डिसीजन को चेंज करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि अगर वो वॉलंटरी नहीं होगा, मन से नहीं होगा, आपने उसको मोटिवेट कर दिया, तो वो मन तो उसका है नहीं, लेकिन क्योंकि मोटिवेट कर दिया, किसी तरीके से दबाव में आ गया, तो आपको सही इंफॉर्मेशन रिसर्चर को वो नहीं देगा। तो कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। और विशेषकर जब वल्नरेबल ग्रुप से डील कर रहे हो, यानी जेंडर से, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के लोगों से, या जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनसे आप कर रहे हो, ट्रांसजेंडर से आप कर रहे हो, या जैसे कोई इन्फेक्टेड डिजीजेस से कोई व्यक्ति है उससे आप कर रहे हो, तो उस ऐसे सैंपल पर कोई प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। रादर स्पेशल केयर होनी चाहिए कि उसको इंश्योर करें कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन इज एन एथिकल प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड बाय इंटरनेशनल लॉ से भी है, यानी ऐसा नहीं है कि नेशनल लेवल पर ही है, इंटरनेशनल लेवल पर भी है। कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। वॉलेंट्री है ना, लेकिन वॉलेंट्री के भी कैसा? कंसेंट कैन बी इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कंसेंट कैन बी इम्प्लाइड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि आप उससे इन्फॉर्म कर रहे हैं, एक आप टेक्स्ट भी दे रहे हैं कि वो कौन है रिसर्चर, उसका पर्पस क्या है, स्टडी की ड्यूरेशन कितनी होगी, क्या प्रोसेस वो फॉलो करेगा, कैसे डेटा कलेक्ट करेगा, इन्वेस्टिगेटर्स को अगर आपने बात करनी तो कैसे बात कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या रिस्क, क्या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, और बेनिफिट है तो क्या बेनिफिट है, पार्टिसिपेंट को क्या बेनिफिट है, सोसाइटी को उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर किसी वजह से, जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स अगर कर रहे हैं, तो अगर पॉलिसी कंपनसेशन की क्या पॉलिसी है, मेडिकल ट्रीटमेंट का क्या अवेलेबल है, कोई इंजरी हो जाए, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए आप क्या करते हैं, फंडिंग आपको कहाँ से मिली है, किसने आपको फंडिंग दी है, कौन इंस्टीट्यूशन से आपका एफिलिएशन है, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका क्या इंसेंटिव है, आप क्यों ये रिसर्च कर रहे हो, और आप क्या इलिटरेट अगर हैं तो कंसेंट कैसे लेंगे, कि उनको पूरी तरीके से वर्बली उनको सारी चीजें ये बतानी पड़ेंगी कि उनमें कोई रिस्क नहीं है, कोई किसी तरीके का लॉस नहीं है, कोई अपना पूरा कांटेक्ट नंबर भी उनको देंगे, इसका कौन चेयरपर्सन है, कमेटी के मेंबर कौन है, वो वॉलंटरी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और खास तौर से अगर HIV, एड्स या सेक्सुअल अब्यूज या इन्फेक्टेड लोगों से अगर बात करते हैं, तो उनके लिए काउंसलिंग की क्या सर्विसेज है, उनके ब्लड के सैंपल की स्टोरेज की क्या फैसिलिटी, तो सारी की सारी एक तरह से इनफॉर्म्ड कंसेंट में आती है। पूरा इसका एक स्ट्रक्चर है, पूरा परफॉर्मा है, जो कि वो व्यक्ति को एक उसके साथ बैठ के भरें या उस व्यक्ति को एडवांस में दें, जो एग्री करता है उसी को हम लेते हैं। दूसरा है कि इसमें लेकिन एक डायलेमा भी है, मतलब बहुत बार सारी की सारी चीजें हम नहीं बता सकते कंसेंट में। अब जैसे आप टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपके कॉलेज में बेस्ट टीचर कौन पढ़ाता है, या डिफरेंट कॉलेजेस में
वी वांट टू आइडेंटिफाई द टीचिंग मेथडोलॉजी, है ना, और हम उन टीचर्स को देखना चाहते हैं जो इस तरह की मेथडोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अगर आप वॉलेंट्री कंसेंट लेंगे और जिस दिन आप ऑब्जर्व करने जाएंगे तो वो तो बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, तो आपका पर्पस ही खत्म हो गया। तो ऐसे केस में कभी कभी हम वॉलेंट्री कंसेंट नहीं लेते। वॉलेंट्री तो लेते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें ना करें, लेकिन कंसेंट लेंगे तो हमारी रिसर्च जो है वो बायस हो जाएगी। इसी तरीके से कहते हैं कि हॉस्पिटल में अगर आप कोई देखना चाहता है कि नर्सेज पेशेंट को कैसे ट्रीट करती हैं, केयर करती हैं, अगर आपने कहा कि जी मैं आपको देखना चाहती हूँ कि आप कैसे पेशेंट को ट्रीट करती हैं, तो वो आपको कभी ट्रू डाटा नहीं देंगी। तो ऐसे केसेस में इन्फॉर्म्ड कंसेंट को आप वेव कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन वेज इन केसेस दैट कंसेंट कैन बी वेव। फॉर एग्जांपल कि कहीं पर भी पार्टिसिपेंट्स का कोई राइट्स, कोई उसका अधिकार वायलेट नहीं हो रहा है, तो हम लिखित में कंसेंट को वेव कर सकते हैं। या बहुत मिनिमल रिस्क है, किसी भी तरह की कोई हानि भी नहीं है, ना तो राइट्स उसका अधिकार को वायलेट कर रहे हैं, ना किसी भी तरीके की हम हानि पहुंचा रहे हैं, तो उसमें भी हम कंसेंट को वेव ऑफ कर सकते हैं। या इम्प्रैक्टिकल है, अब आप ये देखना चाहते हैं कि HIV एड्स का व्यक्ति किस तरीके से बिहेव करता है, सेक्सुअल अब्यूज जिसने किया है वो किस तरीके से बिहेव करता है, तो उसको अगर कंसेंट लेकर के कहेंगे तो वो कभी भी आपको सही मायने में डेटा नहीं देगा। तो इस केस में भी हम कंसेंट को वेव कर सकते हैं। या पब्लिकल डोमेन में ऑलरेडी पब्लिकली डेटा अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जैसे सेंसस का डेटा है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है। हेल्थ एंड फैमिली सर्वे का डेटा है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। NSS का डेटा है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो डेटा पब्लिक डोमेन में है, डॉक्यूमेंट्स में है, एंशिएंट लिटरेचर है, रिकॉर्ड्स है, वर्क है, या कोई परफॉर्मेंसेस हैं, रिव्यूज हैं, क्वालिटी एश्योरेंस स्टडीज है, आर्काइवल मटेरियल्स है, थर्ड पार्टी इंटरव्यूज है, सर्विस प्रोग्राम्स हैं, जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उनके लिए भी हमें किसी तरह की कोई कंसेंट नहीं लेनी होती। यानी क्योंकि वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे डेटा कलेक्ट किया उनसे पहले कंसेंट उन्होंने ले ली होगी। या पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जहां कंज्यूमर एक्सेप्टेंस स्टडीज हैं, उनमें भी हम वेव ऑफ कर देते हैं। या कुछ रिसर्च ऐसी हैं जो एनोनिमाइज्ड बायोलॉजिकल सैंपल फ्रॉम डिजीज्ड सेल से लेते हैं, यानी जो आप कहते हैं ना, जैसे ऑटोप्सी कर दी है, ऑलरेडी व्यक्ति डेड है, उसके सेल से ले रहे हैं, तो उसमें भी क्लिनिकल जो सेल ऑलरेडी है उन्होंने उसका DNA उसके RNA है, तो ऐसे में भी हमें उस व्यक्ति से तो नहीं लेनी है कि वो हमें कंसेंट, क्योंकि वो तो दे ही नहीं सकता, वो ऑलरेडी फ्री है, डिजीज है, उसके सेल की स्टडी हम करना चाहते हैं, तो इन केसेस में कंसेंट हम वेव ऑफ कर देते हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस में। तो ये है रिटन कंसेंट। दूसरी है इम्प्लाइड कंसेंट। इम्प्लाइड कंसेंट का मतलब है कि जब आपने स्टडी की, आपने क्वेश्चनेयर बनाया और क्वेश्चनेयर के पहले पैराग्राफ में ही आपने लिख दिया कि ये रिसर्च के पर्पज से है, मैं कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करूंगा, आपके डेटा को कहीं शेयर नहीं करेंगे, आप जो इंफॉर्मेशन देंगे हम अपने तक रखेंगे, सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए करेंगे, कहीं भी इसको शेयर नहीं करेंगे। अगर वो व्यक्ति ये सब पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चनेयर, रिसर्चर का क्वेश्चनेयर भर देता है या ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार हो जाता है, तो इसका मतलब है इसमें कंसेंट इम्प्लाइड है। क्योंकि अगर वो नहीं भरता तो इसका मतलब वो नहीं करेगा, लेकिन वो भर रहा है तो इसका मतलब वो कंसेंट भी दे रहा है, तो वो इम्प्लाइड कंसेंट है। तो दोनों तरह की कंसेंट हम ले सकते हैं, आइदर इम्प्लाइड कंसेंट ले सकते हैं और दूसरी कौन सी है, अनइम्प्लाइड कंसेंट भी ले सकते हैं, जिसमें कि वो वॉलेंटरी आपको कंसेंट देता है।
इन्फॉर्म्ड और इम्प्लाइड कंसेंट वो देता है। नेक्स्ट जो एथिकल उसमें है कि नो पोटेंशियल हार्म, किसी भी तरीके का जो हमारा पार्टिसिपेंट है, सैंपल है, उसको ना साइकोलॉजिकल हार्म हो, मतलब कोई ऐसी बात ना करे जिससे कि उसकी इमोशंस हर्ट हो जाए, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, वो एंजाइटी या शेम फील करे। कोई सोशल हार्म नहीं होना चाहिए कि उसको सोशल रिस्क है, पब्लिक में आपने उससे पूछ लिया या एम्बेरसमेंट कर दी या स्टिग्मा लगा दिया, जैसे जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, अरे अच्छा आपके तो आप तो इन्फेक्टेड हैं, तो इस तरीके का कोई सोशल हार्म नहीं होना चाहिए। फिजिकल हार्म भी नहीं होना चाहिए। पेन और इंजरी जो है ना, वो कहते हैं कि बहुत, जैसे ब्लड का अगर आपने ग्रुप को लेकर के आप टेस्ट कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो इंजेक्शन भी का जो सुई है वो भी एक तरह से मिनिमम रिस्क वाली और स्टेरलाइज्ड होनी चाहिए, तो मिनिमम फिजिकल हार्म होना चाहिए। लीगल भी हार्म नहीं होना चाहिए। रिपोर्टिंग सेंसिटिव डाटा कुड लीड टू लीगल रिस्क, तो वो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी अगर आप कर देंगे तो लीगल हार्म हो जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी तरीके का स्टडी में कोई हार्म नहीं होना चाहिए। जो भी हम सर्वे करें, जो भी हम स्टडी करें, जैसे कि कॉलेज में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं कि स्मोकिंग का क्या स्थिति है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को आप इस तरीके से कर देंगे, अच्छा आप स्मोक करते हैं, आप सिगरेट भी पीते हैं, आप हुक्का भी पीते हैं, आप दूसरा ड्रग्स भी लेते हैं, तो उससे एंजाइटी स्ट्रेस बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वो कहते हैं कि काउंसलिंग भी करें पहले। अगर कोई सेंसिटिव इशू से रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो अपने टारगेट ग्रुप की, अपने पार्टिसिपेंट्स की काउंसलिंग करना भी बहुत जरूरी है। फिर एनोनिमिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी डेटा कलेक्ट करें तो एनोनिमस होना चाहिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन उसकी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई नाम, हम जनरली ना, आप डेटा इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो या इम्प्लाइड हो, उसमें नाम नहीं लेते हैं। हमें नाम से क्या लेना देना, नाम, या जैसे आप अगर उससे लेते हैं ईमेल से या किसी और से लेते हैं तो आ जाता है, लेकिन उसके लिए भी दूसरा तरीका है। तो कोई नाम नहीं होना चाहिए, फोन नंबर नहीं होना चाहिए, ईमेल एड्रेस नहीं, आईपी एड्रेस नहीं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, फोटो नहीं, वीडियोस नहीं। तो ये हम एनोनिमिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा कलेक्ट पर्सन का फोन से कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा से चांसेस है कि उसका फोन नंबर हमारे पास आ जाता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है कि उस डेटा को हम एक तरह से किसी से शेयर ना करें। या एक और भी है कि उस डेटा को सोडोमाइजेशन, यानी हमने नाम भी लिया, फोन भी लिया, सब कुछ किया, तो उसको रिमूव कर दें और उसको नंबरिंग दे दें 1 2 3 4, और नेक्स्ट टाइम में प्री एंड पोस्ट टेस्ट है तब भी हम उसको नाम की बजाय हम उसका एक तरह से नंबर दे दें, जैसे 3 डिजिट नंबर दे देते हैं। अगर आपका डेटा 3 डिजिट का है तो उसको 3 डिजिट नंबर दे देते हैं। तो एनोनिमिटी मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, कि व्यक्ति जो डेटा दे रहा है उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूं, मैं रियल स्टोरी बता रहा हूं, ये किसी से भी शेयर नहीं करोगे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। जैसे है कि आप जो भी स्टेप लें, कोई भी डेटा, कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए किसी तरीके का। डेटा को स्टोर करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से करेंगे, कोई दूसरा चुरा करके नहीं ले जाए। जनरली हम बहुत सारे कहेंगे कि डेटा कलेक्ट किया उसके बाद हम रद्दी में बेच देते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। कम से कम उस डेटा को कुछ समय के लिए, जब तक कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं चला जाए, तब तक हमें उसे अच्छी तरह से स्टोर करना चाहिए और किसी दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से कुछ डेटा आइडेंटिफाइबल होता है जिसमें सोर्सेज होते हैं, कुछ डी आइडेंटिफाइबल होता है जिसमें हम सोर्सेज को रिमूव कर देते हैं, कुछ अनोनिमस डेटा होता है जो अननेम्ड होता है, कुछ पर्सपेक्टिव डेटा होता है जो पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है, और कुछ रेट्रोस्पेक्टिव डेटा होता है जो पर्पस तो किसी और के लिए कलेक्ट किया गया था, लेकिन क्योंकि अब मुझे भी उसी तरीके के डेटा की जरूरत है तो मैंने उस डेटा को अपने पर्पस के लिए भी यूज कर लिया। लेकिन जब अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसमें कंसेंट लेते हैं कि वो व्यक्ति किसी भी तरीके की उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी एनोनिमिटी, उनका वो खत्म नहीं करेंगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो मतलब जो स्टडी आप कर रहे हैं ऐसा ना हो कि कॉस्ट बहुत अधिक है और बेनिफिट बहुत कम है।
तो उसको भी ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिस यूज ऑफ प्रिविलेज, जो रिसर्चर होते हैं ना वो कई बार मिस यूज भी करते हैं। जो एक स्टडी का एक जिक्र है कि उन इन्वेस्टिगेटर को फील्ड में भेजा और उनको 3 पेन दिए गए, एक रेड, ब्लू एंड क्या कहते हैं, ग्रीन। तो जब वो ग्रीन से और ब्लू से करते थे तो वो ठीक था, जब चाय पानी उसको पिला देता था टीचर या जहाँ डेटा करते थे तो वो ब्लू ग्रीन को हाईलाइट करके बात करते तो रेड से भी थे। एक्चुअल में स्टडी का पर्पस डिफरेंट था कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आप रेड से करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन ग्रीन से करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आप ब्लू से करेंगे कि एनालिसिस में हमें मदद मिल जाए। लेकिन वो इन्वेस्टिगेटर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इतने पावरफुल हो गए कि जिस स्कूल में वो जाते थे और अगर प्रिंसिपल उनको चाय पानी नहीं पिलाता था तो वो बड़े जोर से कहते थे कि भाई वो रेड पेन लाना। और टीचर प्रिंसिपल रेड पेन से बहुत डरता है क्योंकि उसे लगता है कि रेड पेन का मतलब है खतरा है, कुछ लिख कर जाएंगे वो। तो वो कहते हैं अरे सर रुकिए रुकिए, आप पहले चाय पानी तो पी लीजिए, फिर बाद में आप करिएगा स्टडी। तो इसलिए अवॉइड मिस यूज ऑफ प्रिविलेजेस, यानी एज ए रिसर्चर हमें अपने पावर को अपने सब्जेक्ट पर नहीं करना है। अब्यूज ऑफ अथॉरिटी एंड ट्रस्ट इज अनएथिकल। इसी तरीके से डिसेमिनेशन ऑफ फाइंडिंग इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फाइंडिंग्स को जो रिसर्च रिपोर्ट है, शॉर्ट रिपोर्ट शुड नॉट बी रिटन बिफोर ए फुल रिपोर्ट इज रिटन। जनरली क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव समरी पहले बना ली, रिपोर्ट बाद में लिखी, या छोटे रिपोर्ट को हम पब्लिश कर देते हैं। वो कहते हैं कि बिना स्पॉन्सर स्टडी, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, बिना एक्नॉलेजमेंट के भी हमें नहीं करना चाहिए। प्रीडेटरी जर्नल्स बहुत हैं आजकल, इंटरनेशनल जर्नल बहुत आ गए हैं, यानी आप पैसा दे करके या उस तरीके से जर्नल में छपवा लेते हैं। बल्कि कहा गया है एक स्टडी में, सतपति जी ने एक स्टडी की थी 2016 में, और पाया गया कि 51% प्रीडेटर ऑथर्स हैं। यानी इसको हिंदी में अगर कहें तो उन्होंने कहा लुटेरे, यानी किसी का सामान उठाया और किसी का कहीं भी आपने लूट के माल से उसको कर दिया। एंड 18% आर इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो प्रीडेटरी जनरल में ऑथर्स हैं। 15% आर स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड 51% फैकल्टी मेंबर्स एंड 32% आर डॉक्टरल स्टूडेंट्स हैं, जो इस तरीके का प्रीडेटरी जर्नल में छपवाते हैं। प्रॉपर रिसर्च बिहेवियर होना बहुत जरूरी, क्योंकि समय खत्म हो गया, तो मैं लास्ट में सिर्फ नो फैब्रिकेशन, नो फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिसर्च। यानी फैब्रिकेशन का मतलब है कि हम अपने आप ही क्रिएट कर लेते हैं, गए नहीं फील्ड में, डेटा क्रिएट कर लिया, किसी की स्टडी ली, हमने नाम बदला और हमने डेटा को क्रिएट कर लिया। फॉल्सिफिकेशन का मतलब है कि रिजल्ट कुछ और आ रहा था, लगा कि ये तो फेवरेबल रिजल्ट नहीं है। कोई हमने स्कीम को स्टडी किया, गवर्नमेंट क्या कहेगी कि ये तो रिजल्ट तुम्हारा नेगेटिव है, हमने उसको फॉल्स डेटा करके और उसको फॉल्स एनालिसिस करके उस डेटा को कंक्लूजन कर दिया है। तो नो फॉल्सिफिकेशन, नो फैब्रिकेशन, नो प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म मतलब किसी भी तरीके का वर्क को स्टील नहीं करना है, ना वर्ड्स में ना टेक्स्ट प्लेजरिज्म है, कट एंड पेस्ट कर दिया, जैसे मैडम ने, नसरीन जी ने शुरू में ही बताया था कि किसी का कट एंड पेस्ट करके हमने लगा लिया। सेल्फ प्लेजरिज्म भी नहीं किया, अपना पहला कोई और रिपोर्ट छापी, अब कुछ और छाप दी है। कॉपीराइट भी है, उसका भी ध्यान करना बहुत जरूरी है, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। आइडिया का प्लेजरिज्म सबसे खराब है, बल्कि वो कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि टेक्स्ट से भी ज्यादा है कि ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज को चुराना, क्योंकि आइडिया ही तो सबसे बड़ी चीज है जिसके बेस पे आप बाकी का काम करेंगे, तो वो भी एक प्लेजराइजेशन है। तो ये सारा का सारा प्लेजराइजेशन है, और इस पर यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाई है कि ऑल कोटेड वर्क, कोर्ट में जो वर्क करते हैं, रिप्रोड्यूस विद ऑल नेसेसरी परमिशन, वो प्लेजरिज्म में नहीं आता है। ऑल रेफरेंसेस जो आप करते हैं वो प्लेजरिज्म में नहीं आते हैं। जेनेरिक टर्म्स लेते हैं, लॉज लेते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स लेते हैं, वो प्लेजरिज्म में नहीं आता है। तो ये सारे एक प्लेजरिज्म में नहीं आता। लेकिन अगर 0 से 10% आपने किसी का टेक्स्ट चुराया, किसी की बात चुराई, तो वो एक माइनर प्लेजरिज्म है, उसमें पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर 10 से 40% में सिमिलैरिटी है तो वो लेवल 1 हो जाता है प्लेजराइजेशन का, और अगर 40 से 60% है तो वो लेवल 2 हो जाता है, और अगर 60% से अधिक है तो वो लेवल 3 हो जाता है। और एक रिपोर्टिंग और हैंडलिंग प्लेजरिज्म, हर डिपार्टमेंट में कमेटी होती है
जिसमें चेयरमैन मेंबर्स होते हैं, और उसकी पनिशमेंट है। अगर 0 से 10 है तो माइनर सिमिलैरिटी है तो नो पनिशमेंट, लेकिन 10 to 40% अगर प्लेजरिज्म है तो उसकी क्या प्लेजरिज्म है कि वो आस्क्ड टू सबमिट ए रिवाइज्ड रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज कह सकता है। अगर 40 to 60% है तो वो डिबार्ड कर दिया जाता है फॉर रिवाइज फॉर 1 year, 1 साल के लिए वो डिबार्ड कर दिया जाता है स्टूडेंट। और अगर 60% है तो उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाता है। फिर उसने क्या स्टडी की है, और ये सिर्फ स्टूडेंट के साथ भी नहीं है, ये फैकल्टी मेंबर के साथ भी है। फैकल्टी मेंबर में वही है कि 0 to 10% अगर प्रेशराइजेशन है तो कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन अगर पेनल्टी 10 to 40% शैल बी आस्क्ड टू विथड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट। 10 से 40% की अगर प्लेजराइजेशन है तो उस एकेडमिक फैकल्टी को वो मैन्युस्क्रिप्ट को विथड्रॉ करने के लिए कहा जा सकता है। और अगर 40 to 60% है तो शैल बी आस्क्ड टू विथड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट, डिनाइड ए राइट टू 1 annual increment, shall not be allowed to become a supervisor for new masters, MPhil, PhD students for at least 2 years। 2 साल तक उसको कभी भी कोई भी सुपरवाइजरी रोल नहीं दिया जाएगा अगर उसका 40 to 60% है। और अगर 60% से अबाव है तो shall be asked to withdraw the manuscript, तो है ही, shall be denied a right to 2 successive annual increment, shall not be allowed to be supervisor or new masters for 3 years। और इसमें यह है कि आदमी बार बार अगर करता है कि एक लेवल, जैसे उसने 1 लेवल की 10% वाली, तो नेक्स्ट अगर वो उसी तरीके गलती करता है तो लेवल 2 का पनिशमेंट मिलेगा, लेवल 2 की गलती करता है तो लेवल 3 का मिलेगा, और लेवल 3 का पनिशमेंट तो हाईएस्ट पनिशमेंट है। तो इसलिए इसमें प्लेजराइजेशन में पनिशमेंट भी है, जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए लास्ट में यह है कि आप रिसर्चर को एक तो प्लेजराइजेशन ना करें, थैंक्स जब भी का करें, जो भी आपकी मदद की है उसका जरूर एक्नॉलेज करें, उसका थैंक्स करें, रिसर्चर का भी कहीं भी थैंक्स करें। और एज ए फैकल्टी मेंबर आपको स्टेप्स लेने हैं जिससे कि फ्यूचर में एथिकल प्रमोशन हो। उसके लिए है कि इवन स्कूल सिस्टम से ही हमें टीचर एजुकेशन करिकुलम में, स्कूल करिकुलम में एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करनी चाहिए, जिससे कि वो कहते हैं ना कि हैबिट में अगर आ गया तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स टू एड्रेस एथिकल इश्यूज होने चाहिए। जब रिसर्चर ले रहा है तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, फैकल्टी मेंबर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसीलिए तो आजकल ये सब ट्रेनिंग चल रही है, जिससे कि हमारे माइंड में हम सोचे, अगर हम सही में रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो एथिक्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मटेरियल डेवलप करें कि भाई हमारे पास मटेरियल भी तो हो। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो भूल जाते हैं, तो मटेरियल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होना चाहिए एट वेरियस लेवल। और मीडिया का रोल भी बहुत अधिक है कि वो भी मीडिया भी हाईलाइट करे, क्योंकि जो रिसर्च स्टडी हाईलाइट करते हैं, जैसे वो 1972 जो 40 साल स्टडी करी, अगर मीडिया हाईलाइट नहीं करता तो हो सकता है वो और भी आगे चलती। तो ये रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए मार्केट ड्रिवन तो होती है रिसर्च, लेकिन मार्केट ड्रिवन में भी कॉस्ट और बेनिफिट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन से, ethical consideration in research. So thank you very much for your patience in listening. Thank you very much, madam. Thank you very much. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू जी। तो आपका दिन शुभ हो, और जब दूसरा Thank लेक्चर you, सुने तो आप ma'am. और enthusiastically आप लेक्चर सुने। और मैडम नसरीन का बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम अब्बासी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबसे मिलने का मौका दिया। वो कहते हैं गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिला है। तो आप तो गोविंद है हमारे लिए, और गुरु जी है हमारी मैडम। तो इन लोगों ने आपसे मिलने का हमें मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप सभी का दिन सही रहे, स्वस्थ रहें, खुश रहें और पैशन के साथ काम करें। तो कहीं का Thank you, ma'am. थैंक यू सो Thank मच। you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. तो अब Thank you, madam. can I Thank you, leave, madam. मैडम? Thank you, madam. ओके, धन्यवाद आप सब। Okay, okay.
Thank you so much. Thank you.